So we'll begin from today onwards. We'll start with the unit 2 of your wastewater engineering and reuse. Okay. So in the first unit, up till now, we have studied what? We have studied all about the characteristics of sewage, how the sewage is collected, what are the facilities, or you can say the sewerage system, which is used for collection, what are the patterns of collection, okay, how the collected sewage is transported, then how you have taken a look at how the gradients are provided. Okay, then a little bit of construction methods and how to lay the sewers out and how to ensure that no leakages are there. All this you have studied in first this thing. Then you have already studied how the decomposition process takes place. Okay, decomposition means degradation of sewers or decomposition in the organic matter of the sewage. Okay, so you have an idea of how the things work. Mechanism is quite clear to you. What are the concepts behind treating the sewage and whatever it is disposing the sewage? That all is clear to you. Disposal techniques, yeah, we have studied disposal techniques also. Disposal on land, how it is done. Disposal in rivers and water, how it is done. After dilution, it is done always. It cannot be sewage cannot be disposed directly. Okay, then there were a couple of terms like sewage thickness and all. Okay, what is sewage thickness? Anybody who can define what is sewage thickness? I have given this question in assignment also, and I have taught you in the class along with the diagram. Sewage thickness. What is this? Remember that presentation where I showed you how the sewage water is used for agricultural purpose and how when you continuously apply that sewage water or treated sewage also treated wastewater also in the agricultural purpose. After some time, what will happen? The soil pores will be getting clogged. Clogged due to what? Due to the organic matter and inorganic matter present in the sewage, impurities. They will clog the entire pores of the soil and a layer will be accumulated on the soil. Due to this, what will happen? No further seepage of the wastewater will be there into the soil, and the water will start stagnating over there. Okay, that is what? That is your sewage thickness. Clear? I hope you all will remember Yes, the yes, point. sir. Yeah. Okay. So this unit two mainly deals with what? Mainly deals with the sewage treatment. Now that we have all the ideas about the concept and mechanism of how sewage works, how the decomposition process works, okay, how the same dilution technique works. So now we'll be using all those concepts and mechanisms in treatment of sewage. Now, when this we talk about this sewage treatment, what does it mean? Do we need to treat the sewage? What up to what extent do you expect that sewage should be treated? See, water treatment, you all have an idea. You all have studied about that. So, the moment this term coins up water treatment, then you know that water should be made this perfect that it should be used for, it should be able to use for domestic purpose, for drinking purpose as well. Okay. So, but when it comes to sewage treatment, what is the sole motive? The motive is not to treat the sewage up to so much of extent that it can be used for domestic purpose, but it is to take out the all the benefits from the sewage. Okay, and the purpose, what is the purpose of the sewage treatment? To reduce all the unwanted characteristics, reduce it as much as possible. Okay, to reduce the sewage up to a level where when disposed, when it will be disposed, it will not be hazardous at all to neither human beings nor animals. Okay, so to the entire biodiversity, it should not be harmful for the entire biodiversity. So हमें उस or what is our motive? We have to treat the sewage up to an extent where when it disposed, it should not be affecting any biodiversity. That is our motive. Now
You all know, if you want to treat the sewage, what do you have to do? जो सीवेज में कंटेमिनेशन हो रहा है, that contamination is mainly due to what? Mainly due to the organic matter present in the sewage, organic and inorganic both. So inorganic matter you can easily separate it out. How you can separate it out? Through sedimentation. क्योंकि inorganic matter generally it is heavier in nature, then inorganic matter में क्या आएगा? Your debris. Okay, so that you can easily what? You can easily segregate it through sedimentation or grit chambers and screens like these process. Then the main thing that is remaining is your organic matter. So organic, the dissolved organic matter, that is suspended organic matter, it can be removed in this primary सर sedimentation. आवाज डिस्टर्ब हो रही है. Okay. Now it is clear. Hello. Yes, Yes, sir. 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 So what happens Yes, is, sir. yes. So what happens Yes, is, sir. अब clear है. okay, I got it. So the motive is what? To reduce the organic matter. What will create a problem? जो सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तुम्हारा, दैट टू इन डिसॉल्व्ड फॉर्म. सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर वो तुम बहुत इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो. कैसे? स्क्रीन, ग्रिट चैम्बर्स, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक ये सब यूज करके. ओके, so unlike water treatment, we'll talk directly about the same process now. So unlike water treatment, sewage treatment is even a more detailed process. Okay, but there are certain eliminations and certain additions. So this sewage treatment always take place in three stages: primary, secondary, and tertiary treatment. There are always this thing, three stages. So I hope that diagram is visible to all of you. This diagram is visible to all, na? Yes, sir. Yeah. Okay, so we'll start from the leftmost end. Okay, so you have what? You have raw sewage. You have to treat this raw sewage. So what you will do? First of all, primary treatment will be carried out. Okay, so in this primary treatment, what happens? सबसे पहले process, जैसा तुम water treatment में सबसे पहला process क्या होता था तुम्हारा? Screening. Okay, so over here, what we do is, over here also we provide screen. Okay, so the first process of sewage treatment is screening. In screenings, वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट के केसेस में हम लोग सिर्फ क्या यूज करते थे? नॉर्मल स्क्रीन, पोर स्क्रीन, फाइन स्क्रीन दोनों यूज करके काम चल जाता था. बट सीवेज इज समथिंग जहाँ पर तुम्हारा जो डेब्रिस है वो बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, दिस अनवांटेड इम्प्योरिटीज एंड डेब्रिस एंड ऑल, दिस विल बी व्हाट टू मच. व्हाई? बिकॉज इट इज वेस्ट वाटर. एक फ्रेश वाटर नहीं है, वेस्ट वाटर है. सोचो फ्रेश वाटर में भी अवेलेबल था तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा होगा. सो व्हाट वी डू इज we make the use of screens along with certain chambers and marinators, marinators, sorry, not marinators, mercerators. Okay, there is a spelling mistake over here. So screens along with chambers and mercerators are used. These mercerators are you can consider basically, as of now we'll study in detail, but as of now consider them as grinding devices. ठीक, तो जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेब्रिस होते हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हम इन चैम्बर्स से फ्लो कराते हैं. ठीक, तो क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज चैम्बर्स में ही सेटल डाउन कर जाएंगे और वहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. जो सेटल डाउन नहीं कर रही है, जो आगे फ्लो के साथ जा रही है, उसका क्या करेंगे? मर्सरेटर्स यूज करते हैं. मर्सरेटर्स से सर्टेन ग्राइंडिंग विल बी देयर. तो थोड़ी ग्राइंडिंग हो जाएगी तो क्लॉगिंग नहीं होगी स्क्रीन की. फिर हम लगा देते हैं स्क्रीन. स्क्रीन्स लगाने का एडवांटेज कि जो ग्राइंडेड मटेरियल्स है या फिर जो छोटे इम्प्योरिटीज है, वो सारे इम्प्योरिटीज तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएंगे एंड रेकिंग मैकेनिज्म से क्या होगा? स्लाइड डाउन होकर नीचे. व्हाट इज रेकिंग मैकेनिज्म? yes, what is raking mechanism? Anybody? सर सुना है पर ध्यान नहीं आ रहा. वाटर इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाया था, तुम लोगों किसी और ने पढ़ाया था? मैंने नहीं पढ़ाया. अखिलेश सर. यस, जब वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो ये तो पहला ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ा था तुम लोगों ने, दैट वाज स्क्रीनिंग. ठीक है, सो व्हेन वी प्लेस द स्क्रीन, व्हाट इज द एंगल एट व्हिच यू नो यूजुअली प्लेस द स्क्रीन? स्क्रीन को वर्टिकली प्लेस करते हो या एक एंगल पे करते हो? सर एक एंगल पे. इंक्लिनेशन पे. यस, तो वो इंक्लिनेशन क्यों देते हो? व्हाई दैट इंक्लिनेशन इज गिवन? ताकि अपने आप, ताकि एरिया बढ़, सेगमेंट फ्लो करे. क्या करें? जब एरिया बढ़ जब जाए. Okay, which area is increasing? सर
तो जब सेडिमेंट्स आते हैं तो जो उन क्रॉस सेक्शन से एरिया होता है कि सारे सेडिमेंट वो ज्यादा इकट्ठा कर सकता है। बेटा स्क्रीन तो आपकी स्क्रीन साइज तो उतना ही है, एरिया तो नहीं बढ़ रहा। स्क्रीन तो जो आपने वर्टिकल यूज करनी थी वही आप हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड वे में यूज कर रहे हो। एरिया बढ़ रहा है, ये तुम सही कह रहे हो थोड़ा सा, लेकिन ये इसको रिलेट करो जरा। एरिया बढ़ने से क्या हो रहा है? सर फ्लो एरिया बढ़ेगा तो हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण जो भी हमारे फ्लोटिंग मैटर होंगे वो हम कलेक्ट कर पाएंगे इसलिए। हाँ, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रेकिंग मैकेनिज्म। मैं तुम लोगों को एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट या तुम्हारे घरों में कभी स्मॉल स्केल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो वहां पे तुमने देखा होगा कि सैंड को सीविंग करने के लिए क्या करते हैं? जाली लगा देते एक एक जाली लगा स्क्रीन, यस देयर इज अ स्क्रीन, पाइप होते हैं। ठीक है? उसको इंक्लिनेशन पर लगा दिया जाता है, एंड व्हाट दे डू इज दे जस्ट डंप द सैंड ओवर देयर ऑन द स्क्रीन। फिर उसके बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो उस स्क्रीन को मूव नहीं करते हैं, सीविंग करते हैं जैसे नॉर्मली। तो वो स्क्रीन को पकड़ के थोड़ी ना सीविंग करते हैं, नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, वो इंक्लिनेशन पर रख देते हैं, दे प्लेस द दिस थिंग और जस्ट डंप द सैंड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। वहां से क्या होता है, ड्यू टू सेल्फ वेट एंड ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो सैंड तुम्हारा जितना भी कलेक्टेड सैंड वो डंप करके जाते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे खिसक के नीचे आता है। ठीक है? तो जैसे वो स्लाइड डाउन होता है नीचे, तो क्या होता है, सीविंग होती है। ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ मूविंग द स्क्रीन, मटेरियल खुद मूव कर रहा है, और वो मटेरियल का मूवमेंट क्या हो रहा है, दैट इज क्रिएटिंग अ रेकिंग मैकेनिज्म। और जो ये तुम बता रहे हो कि एरिया बढ़ जाता है तो फ्लो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ज़्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन या यू कैन से सीविंग हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो रेकिंग मैकेनिज्म। ठीक है? सो दिस particular thing, this entire phenomena is known as raking mechanism, RACKING, raking mechanism. ठीक है? Always remember this thing. So that is the reason why we place these screens at a inclination. Okay. Okay. So yeah, we were talking about the primary sedimentation, primary treatment process. So these raw sewage, they are converted in this thing, taken on the screen, first introduced to the screen chambers and macerators. Then from there they are taken into the, that particular sample is taken into grit chambers. Grit chambers is a place where all the small particles of suspended impurities will be there, and grit removal take place. We'll study in detail. Okay, then this particular sewage, okay, क्यों? क्योंकि मर्सरेटर से पास हो रहा है, ग्रिड चैम्बर से पास हो रहा है, तो द फ्लो इज टर्बुलेंट, टर्बुलेंस जनरेट हो रखा होता है। उस टर्बुलेंस को हम लोग जनरेट करने, इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर में फ्लो कराते हैं। ठीक है? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नेक्स्ट प्रोसेस, द अपकमिंग प्रोसेस इज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक. In primary sedimentation tank, what we have to do, sedimentation has to be carried out. तो sedimentation carry out करने के लिए flow velocity कैसी होनी चाहिए? sedimentation में दो different velocity, concerned velocity होती है, एक flow velocity और दूसरा settling velocity. तो what should be the nature of flow velocity and what should be the nature of settling velocity? सर जो फ्लो वेलोसिटी है वो स्पाइकिंग वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। flow velocity settling velocity से ज़्यादा होनी चाहिए। स्कोरिंग स्कोरिंग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट कंसर्न वेलोसिटीज इन सेडिमेंटेशन। दो ही मेजर वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी ऑफ फ्लो, दूसरा सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ व्हाट? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज। ठीक है? तो फ्लो वेलोसिटी सेडिमेंटेशन टैंक में कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी वेरी लेस, इट शुड बी लो। ठीक है? एंड सेटलिंग वेलोसिटी इट शुड बी हाई। ठीक है? यस सर। सेटलिंग वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट sedimentation effective हो। settling velocity मतलब क्या? The velocity at which the particles are settling down. Okay, so that should be greater. And what is flow velocity? The flow velocity is the velocity at which the water is flowing through the sedimentation chamber. तो फ्लो वेलोसिटी हमेशा कम होनी चाहिए। अगर फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा होगी और सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा? पार्टिकल तुम्हारा सेटल करने से पहले ही सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? दिस ऑल मैकेनिज्म, दिस एंटायर मैकेनिज्म इज ऑलरेडी टॉट टू यू इन water engineering, but you people don't remember anything. Then this after this thing, after sedimentation, the secondary biological treatment starts.
Okay, now this primary sedimentation tank, this there is one short circuiting in this over there. Okay, जहाँ लिखा हुआ liquid primary sludge. Okay, so from every primary process in ये 3 स्टेज में जो तुम्हारा सेडिमेंट ट्रीटमेंट हो रहा है सीवेज का, हर स्टेज में क्या होगा तुम्हारा, जहाँ पर भी तुम ये कराओगे सेडिमेंटेशन या कोई भी प्रोसेस मेजर प्रोसेस होगा, वहाँ तुम्हारा स्लज जनरेशन, ठीक है, स्लज विल बी जनरेटेड. दैट मीन्स जो स्लरी जनरेट होगी नीचे जहाँ पे, इट विल बी कंटेनिंग व्हाट, स्लज कंसिस्ट ऑफ 99.9% सॉलिड एंड पॉइंट 99.9% solid and 0.1% of water. Okay, so that will be नहीं sorry उल्टा बोल दिया, that is 99.9% of water and 1% solid. Okay, so that entire thing, 0.1% of solid, that entire sludge will be generated in primary sedimentation tank at the bottom of primary sedimentation tank. This particular sludge is has to be fed into the sludge thickener. Okay, जो बाकी का बचा जो स्लज है वो हम एक्सट्रैक्ट करके स्लज थिकनर में डाल देते हैं, और बाकी का जो सेडिमेंटेशन के बाद जो वेस्ट वाटर हमारे पास रिसीव हुआ उसको हम लोग भेजते हैं सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम क्या कराते हैं certain processes like different process like थोड़ा decomposition कराया, introduction of certain bacteria and all is done. Okay, so that the remaining organic matter and inorganic matter that should also be segregated. Over here we make use of the secondary sedimentation tank. Then again secondary sedimentation tank से क्या होगा, again sludge will be generated. तो इसको हम बोलते हैं 2 degree biological sludge, ठीक, और you can say secondary biological sludge. तो दिस अगेन जो भी स्लज जनरेट हुआ उसको हम लोग स्लज थिकनर में फीड कर देंगे एंड जो भी वेस्ट वाटर जनरेट हुआ उसको हम लोग टर्शरी ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे. ठीक, फिर देन फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट से भी क्या निकलेगा, सी हमेशा हर मेजर प्रोसेस से 2 चीजें निकलेगी, एक एफ्लुएंट निकलेगा, दूसरा स्लज जनरेटेड. स्लज हमारे किसी काम का नहीं होता है और हम डिस्पोज आगे ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली. जो एफ्लुएंट निकला उसको हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, या तो फर्दर ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल के लिए फिट कर सकते हैं. ठीक, तो जो स्लज निकलता है हमारे पास, यू हैव टू डील विद दिस, द एंटायर प्रॉब्लम लाइज इन द स्लज इटसेल्फ. all the organic content, organic matter, all the debris, everything is included in the sludge itself. So decomposition भी किसका होता है, एफ्लुएंट का नहीं होता है, जो स्लज तुम्हारा जनरेट हो रहा है उसमें ज्यादा होता है. ठीक है, all the organic matter is in that. So whatever sludge from primary, secondary and tertiary processes generated, all that will be fed into the sludge thickener. From this sludge thickener what will happen, इसके बाद इस स्लज थिकनर में जितना भी स्लज कलेक्ट हो जाता है उसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, उसको हम लोग ले जाते हैं स्लज डाइजेशन प्रोसेस में. ठीक, नाउ स्लज डाइजेशन के लिए डिफरेंट प्रोसेस है. ठीक, इट कैन बी एरोबिक इन नेचर, इट कैन बी एनारोबिक इन नेचर, और it you can use facultative bacteria also. There are process which would be carried out both way also. Okay, so that is your sludge digestion process, जहाँ पे तुम क्या कराते हो, स्लज को डाइजेस्ट कराओगे, या ये बोल सकते हो कि रिड्यूस कराओगे. ठीक, रिड्यूस कैसे कराओगे, उसको डिकम्पोज करा के. डिकम्पोज तुम कैसे करा रहे हो, तुम्हारा क्या रोल है डिकम्पोजिशन कराने में, यू कैन इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. ठीक है, तुम स्लज डाइजेशन कैसे करा सकते हो, यू कैन रिड्यूस द ऑर्गेनिक कंटेंट इन दैट, जो कि न्यूसेंस क्रिएट करना है. और कैसे कर पाओगे वो चीज, बाय altering or you can say increasing the rate of reactions or rate of decomposition. और वो कैसे होता है, ये फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म, वो कैसे होता है. डिकम्पोजिशन अगर तुम्हें बढ़ाना है तो व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज द मेजर थिंग यू कैन डू, बैक्टीरिया ऐड कर दो. Microorganisms are increased. यस, ये सब जो तुम कर रहे हो, बैक्टीरिया ऐड कर दो, ये कर दो, ठीक है, इससे तुम क्या कर रहे हो, यू आर providing favorable conditions for the sludge digestion or decomposition. What you are doing, you are providing the favorable. बस एक काम नहीं करते हम लोग के बैक्टीरिया ऐड करते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें होती है, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं हम लोग. ठीक है, आर्टिफिशियली जो हम ये रेट ऑल्टर कराते हैं डिकम्पोजिशन का, तो उसमें देर आर सेवरल थिंग. ठीक, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
anaerobic process controlled oxygen or you can say no oxygen is provided. ठीक है, limited supply of oxygen is there. फिर एडिशन ऑफ बैक्टीरिया इज देयर, एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरिया. तो तुम्हारे पास बैक्टीरिया का कोई स्टॉक थोड़ी है. आर यू हैविंग एनी सम स्टॉक ऑफ बैक्टीरिया? नहीं ना, यू आर नॉट हैविंग द स्टॉक ऑफ बैक्टीरिया. ऐसा तो नहीं है कि पेड़ से तोड़ के लाओगे. तो क्या करोगे तुम? फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करोगे so that the colonization of the bacteria can be increased. Okay, so you can what you maximum you can do is you can control the external conditions or factors due to which favorable conditions will be generated for further colonization of the bacteria or microorganisms, and the decomposition rate will be altered, that is increased. ये जब हो जाएगा तो क्या होगा? स्लज डाइजेशन शुरू होगा. स्लज डाइजेशन होने के बाद अगेन फर्दर देयर विल बी सर्टेन डाइजेस्टेड स्लज जो सॉलिड फॉर्म है तुम्हारा या सेमी लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होगा, जिसका तुम्हें पता है कि इसके बाद इसका कुछ फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं करा सकते. तो व्हाट यू विल डू, यू विल dispose that digested sludge to drying beds, and certain amount of gases will be there. Which type of gases? Methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, these gases will be released. So you will make use of those gases as well, and a certain portion of this sludge digestion, or you can say digested sludge, this is fed into where? Before the primary sedimentation tank. ठीक है, सर्टेन अमाउंट. ये जो हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराने के लिए. ठीक है, देखो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर शॉर्ट सर्किटिंग. आर यू एबल टू सी द एरो? Yes, sir. Yes, sir. So what we are doing is हम स्लज डाइजेशन टैंक में से पार्शियल अमाउंट ऑफ स्लज लेके इंट्रोड्यूस करा देते कहाँ? फ्लो इन इक्वलाइजेशन चैम्बर. ये करने से क्या एडवांटेज हो रहा है? जो तुम्हारे पास रॉ सीवेज आ रहा है, रॉ सीवेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंटेंट क्या है? बहुत कम है. ठीक है, रॉ सीवेज में डिकम्पोजिशन चालू नहीं हुआ है अभी. ठीक, तो डिकम्पोजिशन चालू होने के लिए पहले क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए. फिर एक एक्सटेंट, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाएंगे उसके बाद वो अपना खाना शुरू करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर. ठीक, कार्बन एंड नाइट्रोजन, दे विल स्टार्ट ईटिंग इट अप. तब जाके तुम्हारा क्या होगा? डिकम्पोजिशन शुरू होगा. तो हम लोग इस प्रोसेस को ऑल्टर कर देते हैं या स्पीड अप कर देते हैं बहुत ज़्यादा. कैसे? हम ऑलरेडी जो स्लज डाइजेशन टैंक है वहाँ से थोड़ा सा स्लज उठा के हम फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, या यू कैन मिक्स इट, यू कैन से दैट वी मिक्स इट विद द रॉ सीवेज. ऐसा करने से क्या हुआ? ऑलरेडी सीवेज वाटर तो तुम्हारा है ही है रॉ फॉर्म में, तो लेकिन पार्शियल अमाउंट में स्लज डालने से क्या होगा? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द दिस थिंग स्लज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस. ठीक है, तो जो कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा तेज हो गया. ठीक है, सो आर्टिफिशियली वी आर इंट्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इनटू द रॉ सीवेज इटसेल्फ. These bacteria will further colonize more and they will help in sludge digestion. Okay, so this is the entire outline of the sewage treatment process. Is there any doubt in this particular thing? Because all these are detailed process जहाँ पे हम लोग सब एक एक करके पढ़ेंगे. But till here, if there is any doubt in the entire process, please let me know. सर एक बार बता दो एफ्लुएंट क्या होते हैं? देखो तुम्हारे पास रॉ सीवेज है, फिर तुमने से ट्रीट किया या जो भी प्राइमरी प्रोसेस से कैरी आउट किए, ओके. उसके बाद हमेशा क्या होगा? हमेशा तुम्हारे पास वेस्ट वाटर जब भी तुम ट्रीट करोगे तो दो चीज़ें जनरेट होगी. ठीक, दो चीज़ें कैसे? एक सेमी लिक्विड फॉर्म में स्लज जनरेट होगा और दूसरा जो पानी जो तुम्हारा जनरेट होगा, ठीक है, दैट इज प्रॉपरली वाटर इटसेल्फ. यार नॉर्मल चीज़ है. देखो तुम यू ऑल हैव मेड टी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो चाय के साथ तुम क्या करते हो? चाय में क्या है? सॉलिड्स भी है, अनवांटेड मटेरियल्स हैं. क्या? जो चाय पत्ती होती है, जिंजर होता है, ऑल दीज आर अनवांटेड मटेरियल. तो तुम क्या करोगे? जो भी तुम्हारे पास चाय नॉर्मल बनी हुई चाय है तो उसको तुम जब फिल्टर करोगे तो एक अनवांटेड मटेरियल बचा तुम्हारे पास जो तुम्हारा सीव में आ जाता है. ठीक है, जो कप में आ रहा है वो तुम्हारा क्या है? एफ्लुएंट है. ठीक, अगर तुम उसको सीवेज की तरह कंसिडर करो तो जो कप में तुम्हारे पास ऑब्टेन हुआ है दैट इज योर एफ्लुएंट. ठीक है, एंड जो सॉलिड मटेरियल, सॉलिड या सेमी लिक्विड पार्ट है कंटेनिंग वाटर आल्सो, दैट इज ऑब्टेन्ड इन द सीव इटसेल्फ. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सीविंग हम क्या कर रहे हैं? हम करा रहे हैं सेडिमेंटेशन, मेनली सेडिमेंटेशन करा रहे हैं. तो सेडिमेंटेशन होगा तो सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड पार्ट जो भी है वो तुम्हारा बॉटम पे सेटल कर जाएगा
उसको तुम रिमूव कर दोगे, वो निकल गया तुम्हारा क्या, स्लज। जो बाकी बचा वाटरी लिक्विड, ठीक है, वो क्या हो गया तुम्हारा, एफ्लुएंट। क्लियर? सर फिर इस एफ्लुएंट का होता क्या है? सर एफ्लुएंट, यस, वन बाय वन। सर ये वाला एरो किस चीज के लिए है सर? ये कौन सा एरो? सर ये वाला। ये बताया तो था अभी। दिस इज योर व्हाट, प्राइमरी स्लज जो तुम्हारा जनरेट हो रहा है, ये प्राइमरी स्लज तुम्हारा स्लज थिकनर में फेड होगा। ठीक है, हर मेजर प्रोसेस से प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज अ मेजर प्रोसेस। ठीक, अगर यहाँ से तुम्हारा कोई भी स्लज जो जनरेट होगा, उसको तुम कहीं तो लेके जाओगे, तो कहाँ लेके जाओगे तुम, स्लज थिकनर में। ठीक है, जो भी स्लज जिस भी मेजर प्रोसेस से जनरेट होता है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, उसके स्लज को हम लोग स्लज थिकनर में इंट्रोड्यूस कराते हैं पहले, जहाँ पे क्या होता है, उसका फर्दर डाइल्यूशन होता है। बिकॉज कंप्लीटली सॉलिड जो ऑब्टेन्ड स्लज है, वो तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी विस्कोसिटी कम करते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी कम करने के बाद उसको हम स्लज डाइजेशन टैंक में डालते हैं। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा मेन प्रोसेस होता है डाइजेशन ऑफ स्लज। ठीक है, इसमें और चीज़ें आएंगी, बैक्टीरिया लाइक एसिड फॉर्मर्स, मीथेन फॉर्मर्स, दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। वन बाय वन वील स्टडी ऑल द प्रोसेस। Okay, these are all, this is all you are included in second and third unit. So this is the outline of your units basically. ठीक है, अभी तो हम यहीं पे हैं। I wanted to give you an outline of the entire process first, and then we will discuss one by one all the processes. Yes, there was some other question also. सर वो एफ्लुएंट का क्या होता है? एफ्लुएंट का बेटा, एफ्लुएंट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। जो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स हमेशा हम डिस्पोज कर देते हैं, या फिर उसको फर्दर रिड्यूस करते हैं, या उसको रीयूज कर सकते हैं किसी काम के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल, जो तुम्हारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर अगर जनरेट हो रहा है एंड इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल, डोमेस्टिक सीवेज का जो एफ्लुएंट है, दैट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, तो हम क्या करते हैं, जो इको पार्क्स वगैरह हैं या एग्रीकल्चर पर्पज है, उसमें यूज कर लेते हैं एफ्लुएंट्स। ठीक है, जो सर्टेन इंडस्ट्रीज आर देयर जिनका एफ्लुएंट क्या होगा, इट इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको हम डिस्पोज करते हैं। आइदर द डिस्पोजल इज डन ऑन लैंड, और डिस्पोजल इज डन इन द वाटर बॉडी, रिवर्स में जो डाइल्यूशन करके कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज एफ्लुएंट। इट कैन बी यूज्ड इफ इट इज फिट फॉर यूज और फॉर सर्टेन प्रोसेस। ओके, इन सीवेज वी हैव टू मेक अ चॉइस। ओके, सीवेज ट्रीट करने के बाद जो भी हमारे पास एफ्लुएंट बचता है, वी हैव टू मेक अ चॉइस if it can fulfill certain purpose at some places without harming the biodiversity. ठीक है, may it be animals, crops, plants, human beings, अगर किसी को हार्म किए बिना कोई रीयूज उसका हो रहा है, तो वी कैन मेक द यूज आउट ऑफ इट। जितने भी तुम्हारे इको इंडस्ट्रियल पार्क्स है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी इंडस्ट्री तुम देखो किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके, फॉर एग्जांपल हिंडन के पास तुम गाजियाबाद में, you all can see there in Ghaziabad there is an eco industrial park. Then I think there is one more eco park in Delhi also. I'm forgetting the name right now. There's one more this thing, eco park in Delhi. Okay, in Chandigarh you can find so many eco parks. So what are all these? These are all this thing. What are all these? These are all the further different uses of what? Uses of the treated sewage effluents. Okay, so I hope this entire process is clear to you. Okay, now there are certain small things like we have already discussed all these things. That primary treatment, it is basically provided to remove the impurities, suspended impurities. किस टाइप की impurities? जो भी suspended वाली impurities हैं, may it be organic or inorganic, these are removed by with the help